مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجناني. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In this video, I will be responding to Muhammad Ali Mirza, who has misinterpreted a beautiful prophecy of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Had he read the hadith himself in context with other hadiths, he would have realized that the interpretation he gives contradicts the words of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब यहाँ पर चलते चलते मैं वो सुरैया सितारा आ चुके, जब भी इसका जिक्र हो तो इसके साथ एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है, और वो हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद रहीमहुल्लाह ताला भी अपने बयानुल कुरान के अंदर इसको बयान करके कई और मौक़े के अंदर के जी इमाम हनीफ़ा रहीमहुल्लाह का ज़िक्र जो है वो कुरान में मौजूद है और बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। और ये सिर्फ़ हनफियों का मसला नहीं है, ये ग़ुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले कहते हैं कि ग़ुलाम अहमद कादियानी का जिक्र जो है वो कुरान के अंदर और बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। There is no doubt that Hazrat Ahmad alayhi salam is mentioned in the Holy Quran. The verse which Ahmadi Muslims present is of chapter 62, verses 3 to 4, in which Allah states, Bismillahir Rahmanir Rahim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Now, if we want to truly understand the meaning of these verses, we should turn to the commentary of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who understood the Quran best. It is narrated, Hazrat Abu Huraira, may Allah be pleased with him, narrated, while we were sitting with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Surah Al-Jumu'ah was revealed to him, and when the verse, and he, Allah, has sent Muhammad sallallahu alaihi wasallam also to other Muslims, meaning a second coming of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was recited by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I said, who are they, O Allah's Messenger? The Prophet sallallahu alaihi wasallam did not reply till I repeated my question 3 times. At that time, Salman al-Farsi was with us. So Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam put his hand on Salman, saying, if faith were at the place of Ath-Thuraya, meaning the highest star, even then someone from these people would attain it, meaning that person would revive Islam and bring it back. This hadith is narrated in Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, and countless of other books of hadith. From this incident, the Sahaba understood that according to this verse, Allah the Almighty has promised that He would send the Prophet ﷺ 2 times. One was His first coming, and then a second coming in the end times for those who have not yet joined the Sahaba, meaning a long period of time. The Sahaba did not ask how He ﷺ would be sent, nor did they ask him if he ﷺ would live that long.
They simply asked who those blessed people would be who would witness that time. The Prophet ﷺ then put his hand on Hazrat Salman Farsi and said that if faith ascends to the highest star in the sky, a man from among the Persians would bring it back. His answer was not regarding what they had asked. Their question was about those people who would be blessed with the second coming of the Prophet ﷺ. But the answer of our beloved Prophet ﷺ was regarding his second coming, to clarify to the Sahaba that he himself will not come again. Rather, it would be someone from among the Persians who would be like the Prophet ﷺ, as if they are one and the same person, to do the tarbiyat of the latter-day Jamaat. 8 से ऑलमोस्ट 12-13 साल पहले की बात है, ऑलमोस्ट 12 साल की कह लें आप। यहाँ पर कुछ कादियानी आए और उन्होंने यही कहा, जी कुरान में मौजूद है जिक्र। मैंने कहा जी कहाँ पे? कहते हैं सूरतुल जुमुआ के अंदर, और बुखारी में हदीस भी है। तो मैंने उनको कहा कि पहले तो मुझे ये बताओ, तुमने खुद बुखारी पढ़ी है? कहते नहीं, पढ़ी नहीं है, हमने सुना है। मैंने कहा अभी अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो बुखारी में अल्फाज क्या हैं, उसमें गुलाम अहमद कादियानी कहाँ से आ गया। Now this story seems made up because if an Ahmadi is preaching to Muhammad Ali Mirza, it is obvious that they would have prepared and would have done their research. Anyone who reads the books of the promised Messiah ﷺ has read this hadith of Sahih al-Bukhari, because the promised Messiah ﷺ has used it for his truthfulness on many occasions. Allah knows best. वो है सूरतुल जुमुआ पारा नंबर 28 के अंदर अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुबारक दावत है उसका जिक्र करते हुए फरमाया, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। वही अल्लाह है जिसने इन उम्मिय्यीन में, अहले मक्का में, या ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे उनमें से, उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन पर अल्लाह की आयात तिलावत करता है और उनका तज़किया करता है और उन्हें किताब व हिकमत सिखाता है। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लाल मुबीन, और इस कुरान के नुज़ूल से पहले और नबी इस्लाम के तशरीफ़ आवरी से पहले ये लोग खुली गुमराही में थे। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, और अभी तो और लोग हैं जो बाद में आएंगे और इनसे आकर मिलेंगे, अभी तक वो मिले नहीं हैं, यानी ताबईन। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वही गालिब है और हिकमत वाला है। Now this shows the ignorance of Muhammad Ali Mirza, as proven by the hadith of Sahih al-Bukhari. This refers to when faith would ascend to the highest star in the sky, when nothing would be left of Islam except its name, and nothing of the Quran except its words. The teacher of Muhammad Ali Mirza, Dr. Israr Ahmed, also explained this hadith, which mentions the condition of the Muslims in the end times. हुजूर ने फरमाया, यूशिकु अन याति अलन्नास ज़मानुन, अंदेशा है कि लोगों पर, यानी मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा भी आ जाएगा, अब गिनते जाइए, ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, इस्लाम में से उसके नाम के सिवा कुछ नहीं बचेगा। वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान में से उसके रस्म, रस्मुल खत, अल्फाज और हुरूफ के सिवा कुछ नहीं बचेगा। उसी की अल्लाह ताला ने जमानत दी है, ये महफूज रहेगा रस्म उस्मानी। मसाजिदुहुम आमिरतुन, उनकी मस्जिदें आबाद तो बहुत होंगी, वहिया खराबुम मिनल हुदा, हिदायत से खाली हो जाएंगे। ये खराब के लफ्ज़ से, हिया खराबुम मिनल हुदा, व उलमाहुम शर्रुन नास तहता दीमिस समा, और उनके उलमा आसमान की छत के नीचे की बदतरीन इंसान हैं। मिन इंदिहिम तखरुजुल फितनतु व फीहिम तऊद, फितना उन्हीं के अंदर से बरामद होगा, उन्हीं में घुस जाएगा। यानी उनका काम फितना अंगेजी, मुखालिफत, जंगो जिदाल, भड़काना, अपने अपने फिरके के लोगों के जज्बात को भड़काते रहना और मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफात को हवा देना, यही उनका काम रह जाएगा। आज जिनको हम उलमा कहते हैं,
उनकी अजीम अक्सरियत इस कैफियत से दो चार हो चुकी है। Muhammad Ali Mirza has misunderstood the prophecy of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It cannot refer to the people he says, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that those people were the best of the Muslims. The Prophet sallallahu alaihi wasallam stated, the best people are those living in my generation, and then those who will follow them, and then those who will follow them. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that this would be the best time for Islam, but according to Muhammad Ali Mirza, it would be the worst time for the Muslims, and Iman would already be at the Suraya. God forbid. अब ये जो अल्फाज है ना, वह आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, तो साहबा ने पूछा, इस कॉन्टेक्स्ट में हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर, कि ये कौन से लोग हैं जो हमें आकर मिलेंगे और बाद में वो मुसलमान होंगे, कि जिनकी तौसीफ अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी जो आपके पास बैठे हुए थे, उनके कंधे पर हाथ रख के कहा कि अगर दीन सुरैया सितारे की चोटी पर होता तो अहले फारस में से कुछ लोग उससे भी हासिल कर लेते। अब इसमें ना तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कहीं नाम मौजूद है, ना कहीं पर गुलाम अहमद कादियानी का। As already proven according to the ahadith, this was to happen in the end times, when there would be nothing left of Islam except its name, and nothing left of the Quran except its words. In fact, Muhammad Ali Mirza has accepted that this division in the Ummah occurred in the 13th century of Hijri, the time when Allah the Almighty sent the promised Messiah alayhi salam. पुराने सारे बुजुर्ग उनके, इवन ये आप समझ लें 13वीं सदी तक के सारे बुजुर्ग कॉमन है, 13वीं सदी तक के सारे बुजुर्ग कॉमन है। अब इब्ने आबदीन शामी का फतावा शामी देवबंदी भी पढ़ते हैं और बरेलवी भी पढ़ते हैं। उस वक्त तक सारे इकट्ठे थे, उस वक्त तक सारे इकट्ठे थे। अगर मुझसे पूछे तो मैं इन सबसे ज्यादा अहल समझता हूं Imam Muslim ko. Now Hazrat Imam Muslim was a great scholar of Islam, but this prophecy is not referring to him. According to the logic of Muhammad Ali Mirza, the prophecy of the Prophet Muhammad ﷺ failed. God forbid. How was faith already at the highest star in the sky when the Prophet ﷺ said that this would happen in the end times and Islam would be at its best during the first 300 years? Muhammad Ali Mirza accepts that all this corruption took place in the 13th century, which proves that this was the time of the latter-day Messiah. Regarding this time, Nawab Nurul Hasan Sahib wrote, अब इस्लाम का सिर्फ नाम, कुरान का सिर्फ नक्श बाकी रह गया है, meaning that the only thing which remains of Islam is its name and the script of the Quran. He then stated that नीज सच्ची बात तो ये है कि हम में से कुरान मजीद बिल्कुल उठ चुका है, meaning that the Quran has ascended away from us. अब मेहदी को भी ना लोग शुरू में जाली समझेंगे, उनको कत्ल करने के लिए भी लोग जाएंगे, उनको कत्ल करने के लिए भी लोग जाएंगे, उनको कत्ल करने के लिए भी लोग जाएंगे, लेकिन हक आ जाने के बाद भी इन लोगों ने दीन कबूल करने से इनकार किया। और इसकी रीज़न जो है वो अल्लाह ताला ने सूरह अल इमरान में बताई है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के हुजूर एक्सेप्टेबल दीन क़यामत के दिन इस्लाम है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि इस्लाम के आ जाने के बाद जो यहूद व नसारा ने इस दीन के साथ इख्तलाफ किया तो वो बग़यम बैनहुम की वजह से, आपस की ज़िद की वजह से किया। ये ज़िद इतनी बुरी चीज़ है कि वक्त का पैगंबर मौजूद हो तब भी इंसान को बात समझ नहीं आती। मुझे ये बताएं कि ये वक्त के जो पैगंबर हुआ करते थे, इनके मुखालफीन कौन लोग हुआ करते थे? या उस एरिया के बड़े बड़े सरदार हुआ करते थे या उलमा? कभी अवामुन नास नहीं खड़ी हुई। बुखारी मुस्लिम में आता है ना वो जो अबू सुफियान की और कैसरे रोम की गुफ्तगू है, तो वो उससे सवाल पूछता है, बताएं ईमान कौन ला रहा है? उनका गरीब गरीब लोग ही लेके आते, तकरीबन नहीं ले आना है ना, क्योंकि गरीब तो पहले ही पीस रहे होते हैं। उनको तो उम्मीद की किरण नजर आता है पैगंबर के, चलो ये हमें कोई इंसाफ दिलवाएगा। अमीर लोग स्टेक पे लगे होते हैं, उनकी चौधराटें खत्म हो रही होती हैं, सरदारों की सरदारियां खत्म हो रही होती हैं, वो तो पैगंबरों के फिर मुखालफीन बनते हैं ना, और उलमा भी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
की मुखालफत किसने की थी? उलमा यहूद ने। ये यरूशलेम के अंदर जब ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस में जाके दावत तौहीद बुलंद किया करते थे तो उनकी मुखालफत पे कौन खड़ा होता था? उलमा यहूद। तो मौलवी इन्नी भैड़ी शाह है कि पैगंबरां दे खिलाफ खलोल जांदा जे। पॉइंट टू बी नोटेड। और ये इतनी बुरी कैटेगरी है कि इनको पैगंबर भी आके समझाए ना तो ये बात नहीं मानने के लिए तैयार होते हैं, उल्टा ये अंबिया की तौहीन करना शुरू कर देते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत किसने की है मदीने में? पहले औस और खजरज को ये यहूदी कहा करते थे कि वो आखिरी नबी आएंगे तो हम उनके साथ मिलकर तुम्हारे साथ किताल करेंगे, पूरी दुनिया पे हमारी हुकूमत होगी। और जब नबी अलैहिस्सलाम आ गए तो ये यहूदी मुखालिफ हो गए। तो यहूद के उलमा थे। क्यों? वो कहते थे कल का छोकरा आके हमें समझा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम तो उनके बच्चों की जगह थे ना। जहां 70-80 साल के सफेद दाढ़ियों वाले मौलवी बैठे हों यहूदियों के, वहां एक 50 साल का काली दाढ़ी वाला बंदा चला जाए तो वो बच्चे ही कहेंगे ये काली दाढ़ी वाला सफेद दाढ़ी, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग पागल है। तो पैगंबर की मुखालफत में भी मौलवी खड़ा हो जाता है। आज भी जो दावत पैगंबर के पैटर्न पे खड़ी होगी सबसे पहले मौलवी मुखालफत करेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बैत शुरू होगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दुनिया के किसी मजहब का मानने वाला मौलवी, चाहे हिंदुओं का हो पंडित, चाहे वो ज्यूज और क्रिश्चियंस के पादरी हो, चाहे सिखों के गुरु हो, कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारी किताबें डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। सिर्फ ये मुसलमानों का मौलवी है जो कहता है कुरान बुखारी मुस्लिम डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। क्यों? उसको पता है जो सदियों से हमने कहानियां कराई हैं ना, कुरान में वो कहानियां नहीं लिखी हुई। If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفينا صل على محمد